آپ کو دیکھ کر اچھا لگا. خدا آپ کو برکت دیں. آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واعظ کے عنوان آسمانی ماں اور ہمیشہ کی زندگی سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں. جب خدا نے کتاب مقدس کی تمام 66 کتابیں مکمل کیں تو انہوں نے آخر میں ایک بہت اہم پیغام چھوڑا. انہوں نے اس پیغام پر زور دیا کہ کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ ہی کچھ نکالنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے پیشتری کتاب مقدس کے ذریعے ہمیں خدا کی بادشاہی کی راہ دکھائی ہے. لہٰذا اگر ہم بعض فلسفیوں اور مفکرین کے خیالات کو کتاب مقدس میں شامل کریں تو وہ خیالات ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے میں رکاوٹ بن جائیں گے. اسی لیے ہمیں کتاب مقدس میں انسانی مصنوعی مواد کو ہرگز شامل نہیں کرنا چاہیے. صحیح؟ پہلے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آیا کتاب مقدس میں ایسی کوئی تعلیم ہے؟ ہم مکاشفہ باب 22 آیت 18 سے دیکھتے ہیں. میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں. یہاں کتاب سے مراد کتاب مقدس ہے. صحیح؟ اس لیے سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ لکھا ہے کہ میں ہر اس شخص کو خبردار کرتا ہوں جو کتاب مقدس کی نبوت کی باتیں سنتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے، مطلب کتاب مقدس میں لکھے گئے کلام میں، تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا. اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے، مطلب کتاب مقدس کے کلام میں سے نکالنا، تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر جو کہ آسمان کی بادشاہی ہے میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. خدا نے یہ مکاشفہ یوحنا رسول کو پتمس کے جزیرے پر اپنے پختہ کلام سے دیا تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے آسمان کی بادشاہی میں شریک ہونے کا استحقاق لے لیں گے. کتاب مقدس کے ان کلمات کے علاوہ ہمارے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے بارے میں کوئی اور تعلیم نہیں ہے. خدا ہی ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز کو بنایا تھا. انہوں نے آسمان کی ابدی بادشاہی اور جہنم کو بھی بنایا تھا. کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی تھیں. بس ہمیں کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں نہ کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ ہی ان میں سے کچھ نکالنا چاہیے. تو پھر آج ساحل سمندر کی ریت کی مانند بے شمار کلیسیائیں کیوں صرف خدا باپ پر ایمان رکھتی ہیں اور خدا ماں پر نہیں؟ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ خدا کی کلیسیا خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں پر بھی ایمان رکھتی ہے. تاہم چونکہ دیگر کلیسیائیں لوگوں کو سکھاتی ہیں کہ خدا صرف باپ کے طور پر موجود ہیں، اس لیے ان میں اور ہمارے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے. اس کے باوجود ابتدائی کلیسیا کے وقت سے مستند کلیسیا جو مستند راہ پر چلی آ رہی ہے خدا کی کلیسیا ہے. رسولوں نے کبھی اتوار کی عبادت نہیں کی تھی. یسوع کی پیروی کرنے والے رسولوں اور تمام ایمان کے باوجودات نے کبھی کرسمس نہیں منایا تھا. تاہم آج کل دنیا سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ سے بھری پڑی ہے. اس وجہ سے جیسا کہ یسایہ باب 5 آیت 20 میں پیشتری نبوت کی گئی تھی، دنیا سچی کلیسیا پر تہمت لگا رہی ہے جو خدا کی تعلیمات کو مانتی اور ان کی فرمانبرداری کرتی ہے. آج واعظ کے عنوان آسمانی ماں اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہم پہلے غلطیوں باب 4 کی طرف جاتے ہیں. غلطیوں باب 4 آیت 28 سے دیکھتے ہیں. بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح ہم کون ہیں؟ وعدہ کے فرزند ہیں. کتاب مقدس ہمیں وعدہ کے فرزند پکارتی ہے. خدا نے ہمیں کون سا وعدہ دیا ہے جو ہمیں اس اظہار بیان کی طرف لے جاتا ہے؟ ہم پہلے یوحنا کی کتاب باب 2 آیت 25 کی طرف جاتے ہیں.
आइए बाप 2 आयत 25 से देखते हैं। और जिसका उसने हमसे वादा किया, यहाँ उससे मुराद खुदा है। क्या ऐसा नहीं है? बस दूसरे अल्फाज में, और जिसका खुदा ने हमसे वादा किया, वो क्या है जिसका खुदा ने हमसे वादा किया था? वो हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी का मतलब है अब तक जिंदा रहना। खुदा ने हमसे हमेशा की जिंदगी का वादा किया है, जिसके जरिए हम अब तक जिंदा रह सकते हैं। इस वजह से किताब मुक़द्दस हमें क्या पुकारती है? किताब मुक़द्दस हमें वादा के फर्जंद पुकारती है। यहाँ हमें लफ्ज जिंदगी के बारे में एहतियात से सोचने की जरूरत है। इस जमीन पर बेशुमार जाने मौजूद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी किससे हासिल की और किससे विरासत में पाई थी? इस जमीन पर रहने वाले इंसानों, जानवरों, आसमान में परिंदों, समुद्र में मछलियों और खेतों में दौड़ने वाले हिरणों के बारे में सोचें। जब हम इन गुनाह मखलूकात का मुशाहिदा करते हैं तो ये सब अपनी जिंदगी अपनी मां से विरासत में पाती हैं। क्या मां के बगैर जिंदगी दी जा सकती है? नहीं। यहां हमें एक बहुत अहम तालीम मिल सकती है। जब हम उस खालिक की दूरंदेशी पर गौर करें जिन्होंने तमाम चीजें बनाई, तो हम देख सकते हैं कि खुदा ने हर जानदार को इस तरह पैदा किया कि वो मां के वसीले जिंदगी पाएं। क्या मां के बगैर जिंदगी दी जा सकती है? 21वीं सदी में साइंसदानों ने वसी तहकीकात की, ये पूछते हुए कि जिंदगी का मंबा क्या है। नतीजतन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया दरियाफ्त किया, जो जिंदगी का अंसर है, जो सिर्फ मां से बच्चों को मुंतकिल होता है। ये कहा जाता है कि बच्चों को सिर्फ मां का माइटोकॉन्ड्रिया विरासत में मिलता है। ये खालिक हैं जिन्होंने यूं तख्लीक किया था। खुदा ने ये अमल क्यों बनाया जिसके जरिए जिंदगी बच्चों को मुंतकिल होती है? खुदा ने इस जमीन पर तमाम चीजों को तख्लीक करते वक्त ये जिंदगी देने वाला अमल बनाया। इसमें एक मफहूम पोशीदा है। हमें अनदेखे आसमानी जहान के असूल को समझाने की गर्ज से खुदा ने देखी दुनिया इस जमीन पर जिंदगी के असूल बनाए। जरा इस पर गौर करें। क्या समुद्र में मछली, खेतों में दौड़ते हुए हिरन और खरगोश या कोई और मखलूक है जो मां के बगैर पैदा हुई है? कोई नहीं। जब हम इन सब पर गौर करें तो किसका वजूद होना चाहिए? मां का वजूद होना चाहिए। तो फिर हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस बात को यकीनी बनाने में खुदा की क्या मर्जी है कि कोई जानदार अपनी मां के बगैर पैदा ना हो। इस मसले के हवाले से खुदा की तरफ से यूहन्ना रसूल पर एक निहायत अहम मुकाशफा नाजिल हुआ था। आइए मुकाशफा की किताब बाब 4 खोलते हैं। मुकाशफा बाब 4 आयत 9। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने, खुदा ने क्या पैदा किया था? सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। खुदा ने सब चीजें इस आलमी गांव में पैदा की हैं जो आज हम देख रहे हैं। खुदा ने इन्हें महज बेमतलब पैदा नहीं किया था। उनकी हर तख्लीक अपने अंदर कुछ ना कुछ रखती है। उन्होंने इनके अंदर क्या रखा था? ये लिखा है कि ये खुदा की मर्जी से पैदा की गई थीं। तो फिर हम इस पर गौर करते हैं। खुदा ने बाप के वसीले बच्चा पैदा करने की इजाजत क्यों नहीं दी? एक नाल के जरिए सिर्फ एक मां और उसका बच्चा एक जिस्म होते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद नाल काट दी जाती है। क्या ऐसा नहीं है? खुदा ने क्यों उन्हें इस तरह पैदा होने की इजाजत दी है? जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वो पहले अपनी माओ को ढूंढते हैं। बाप को मायूस होने की जरूरत नहीं है।
खुदा ने इसे यूं बनाया है। बेशक बच्चे अपने बाप और अपनी माँ को पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव रखते हैं। ऐसा लगता है कि चूंकि माँ कभी अपने बच्चों से जुड़ी रहती थी, इसलिए अपने बच्चों के लिए उसकी मोहब्बत ज्यादा मजबूत होती है। अगर खुदा ने ऐसा ना किया होता तो क्या बनिनो इंसान महफूज रह पाते? मुकाशफा बाब 4 में यह लिखा है कि वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। हमें खुदा की अजीम दूरंदेशी को समझना चाहिए, जो बच्चों को जिनकी बाप के वसीले नहीं बल्कि माँ के वसीले बख्शते हैं। माँ के बगैर हरगिज़ जिंदगी नहीं दी जा सकती। साइंसदानों का कहना है कि बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ माँ के वजूद से ही विरासत में मिल सकता है, जो जिंदगी के लिए अहम है। मैं हयातियात का माहिर नहीं हूं। 21वीं सदी में साइंसदान जिंदगी के सवाल के बारे में तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये किसकी मर्जी है? ये खुदा की मर्जी है। ये खुदा की गहरी मर्जी है, जिन्होंने इब्तिदा ही से सब चीजें पैदा की थीं। तमाम बनेनो इंसान जिस्मानी जिंदगी अपनी जिस्मानी माँ से मिरास में पाते हैं। तो फिर रूहानी जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? हम रूहानी जिंदगी किससे मिरास में पाएंगे? हमारी रूहानी जिंदगी बजाते खुद वजूद में नहीं आती। किसके वसीले रूहानी जिंदगी दी जाएगी? इस सवाल के हवाले से हमें किताब मुक़द्दस जवाब देती है। पैदाइश बाब 1 आयत 26। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। दुनिया की कलीसियाएं सिर्फ एक खुदा के बारे में बात करती हैं, जो खुदा बाप हैं। जो किताब मुक़द्दस खुदा की कलीसिया इस्तेमाल करती है, वो उनकी किताब मुक़द्दस से मुख्तलिफ नहीं है। ये सब एक जैसी हैं। अगर खुदा सिर्फ एक है, तो खुदा लफ्ज हम का इस्तेमाल क्यों करेंगे? खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। ये बहुत अहम अल्फाज हैं। अगर खुदा एक है तो यहां वाहिद सीगा लिखा जाना चाहिए कि मैं इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाऊं। क्या ये समझ में आएगा? इसके बावजूद चाहे हम किताब मुक़द्दस को अंग्रेजी में पढ़ें या असल इब्रानी जुबान में या कोई और तर्जुमा हो, ये आयत मुताबिकत रखती है। ये सब जमा सीगा में लिखी गई हैं। आप सब क्या खुदा मैं और हम में फर्क नहीं कर सकते? ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये खुदा के अल्फाज हैं। खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। इसका मतलब है कि खुदा जिन्होंने तमाम बनेनो इंसान को पैदा किया, वाहिद खुदा नहीं है। जब हम मुंदरजा झेल आयत को पढ़ें तो हमें ज्यादा वाज़ेह तौर पर जवाब मिल सकता है। हम आयत 27 देखते हैं। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। कौन पैदा किए गए? नरो नारी, उनको पैदा किया। खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, और उन्होंने इंसान को खुदा की सूरत पर पैदा किया। फिर नरो नारी पैदा किए गए थे। सादा अल्फाज में कहें तो ये खुदा की सूरत की नकल है। इसलिए हम इन दो लोगों के जरिए खुदा की सूरत को समझ सकते हैं, जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं। सही? खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, और खुदा की नर सूरत की मानिंद एक नर पैदा किया। इसी वजह से आज लोग नर सूरत वाले खुदा को बाप पुकारते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या ये खुदावंद की दुआ की पहली आयत नहीं है? ये वो दुआ है जो यीशु ने हमें सिखाई थी। तो फिर चूंकि ये लिखा है कि नरो नारी पैदा हुए, तो सवाल पैदा होता है कि औरत किसकी सूरत पर पैदा की गई थी? जैसा कि हमने तस्दीक की है कि मर्द खुदा की नर सूरत पर पैदा किए गए हैं, तो फिर फितरी तौर पर
औरतें खुदा की नारी सूरत पर पैदा की गई हैं, क्या वो नहीं की गई हैं? अगर खुदा की नर सूरत को खुदा बाप कहा जाता है, तो फिर हमें खुदा की नारी सूरत को क्या पुकारना चाहिए? उन्हें पुकारने के लिए हमारे लिए दुरुस्त इस्तेलाह क्या है? ये खुदा माँ है। खुदा बाप और खुदा माँ इकट्ठे कहते हैं, हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं और नर और नारी दोनों को पैदा किया। नर और नारी खुदा की सूरत के बरक्स नहीं, बल्कि ऐन मुताबिक खुदा की सूरत पर बनाए गए थे। बस मर्द और औरत की तख्लीक से हम खुदा की सूरत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या खुदा की सिर्फ नर सूरत है या कोई और भी है? पैदाइश की किताब से हम तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई खुदा की नारी सूरत भी है। अगर आप इस इंदराज को पढ़ने के बाद भी खुदा माँ को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो आपको अपनी जुबान नए सिरे से सीखनी चाहिए। नर सूरत खुदा बाप की सूरत पर पैदा की गई थी और नारी सूरत खुदा माँ की सूरत पर पैदा की गई थी। इस मामले के हवाले से बात शायद पूछें, क्या वाकई आसमान में खुदा माँ है? दुनिया भर की कलीसियाएं, खा प्रोटेस्टेंट कलीसिया हो या कैथोलिक कलीसिया हो, वो सिर्फ खुदा बाप पुकारते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुदा माँ नहीं पुकारा। क्या वो पुकारते हैं? वो दुरुस्त हैं। खुदा माँ की नबुव्वत के बारे में किताब मुक़द्दस हमें क्या बताती है? वो कब जाहिर होंगी? वो ना तो बाप के जमाने में और ना ही बेटे के जमाने में, बल्कि किस जमाने में जाहिर होंगी? ये नबुव्वत अब बने नूह इंसान पर जाहिर हुई है, क्योंकि उन्हें रुल कुद्स के जमाने में जाहिर होना है। नबुव्वत के पूरा होने का एक खास वक्त है, इसीलिए वो अब तक नहीं जानी गई, बल्कि किताब मुक़द्दस में सिर्फ नबुव्वत के तौर पर मौजूद हैं। तो फिर आइए हम गलतियों 4 बाब से खुदा माँ के बारे में मजीद तस्दीक करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम उन्हें किताब मुक़द्दस में लफ्ज माँ लिखा हुआ दिखा दें, तो वो उन पर यकीनन ईमान रखेंगे। किसी भी मुल्क में हर जुबान में किताब मुक़द्दस में एक जैसी तालीमात मौजूद हैं। हम गलतियों बाब 4 से देखते हैं। गलतियों बाब 4 आयत 26 में ये लिखा है कि मगर आलमी बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही वो कौन है? हमारी माँ है। मत्ती बाब 6 आयत 9 में यीशु ने कहा कि जब हम दुआ करें तो हमें कहना चाहिए कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान किया कि आसमान में खुदा हमारे बाप के तौर पर पुकारे जाते हैं। तो फिर गलतियों बाब 4 में किसका जिक्र किया गया है? मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। लफ्ज हमारी माँ किताब मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि हमारी माँ यकीनन मौजूद हैं। यहाँ हमारे से मुराद निजात पाने वाले लोग हैं। लिहाजा निजात पाने वाले लोगों को खुदा माँ पर ईमान रखना चाहिए। अगर निजात पाने वालों के पास खुदा माँ नहीं है, तो किताब मुक़द्दस से लफ्ज हमारी माँ को निकाल देना चाहिए। ताहम किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये लिखा है कि हमें इन अल्फाज में ना कुछ बढ़ाना चाहिए और ना ही इनमें से कुछ निकालना चाहिए। क्या खुदा ने हर वो चीज जो हमारी निजात के लिए जरूरी है किताब मुक़द्दस में नबियों के जरिए दर्ज करने की इजाजत नहीं दी? बिलाशुबा हमारे पास कौन है? चाहे हम पैदाइश बाब 1 या गलतियों बाब 4 पढ़ें, हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि हमारी आसमानी माँ है जो हमारी रूहों की माँ है। इसीलिए जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप मर्द अराकीन को भाई और ख़वातीन अराकीन को बहनें पुकारते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद ये हमें चर्च की तरफ से दिए गए अलकाब हैं। ताहम ये महज एक लक़ब नहीं है। ये महज एक लक़ब नहीं है जिसे हम चर्च में एक दूसरे को पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे हकीकी भाई और बहनें हैं। किसने हमें ये सिखाया है? जिन्होंने रुल कुद्स से तहरीक पाई, उन्होंने ये सब किताब मुक़द्दस में दर्ज किया, और हत्ता कि खुदा खुद इसकी गवाही देते हैं। आइए हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 6 आयत 17 से देखते हैं। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है,
कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। और तुम्हारा खुदा हमारे क्या होंगे? बाप होंगे। खुदा हमारे बाप होंगे और तुम मेरे, हम क्या होंगे? बेटे बेटियां होंगे। अंग्रेजी किताब मुक़द्दस में बेटे बेटियां लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये किसका कॉल है? ये खुदावंद कादर मुतली का कॉल है। किताब मुक़द्दस वाज़ेह गवाही देती है कि खुदावंद कादर मुतलिक ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो फिर किसने बेटे और बेटियों को जन्म दिया? वहां कौन होगा? बेटों और बेटियों को रूहानी जिंदगी बख्शने वाले को जरूर होना चाहिए। अगर इस ज़मीन पर हमें जिस्मानी जिंदगी हमारी जिस्मानी माँ ने बख्शी है, तो हमारी रूहों को हमेशा की जिंदगी भी हमारी रूहानी माँ आसमानी माँ ने बख्शी है। ये उनके बगैर नहीं दी जा सकती। आज बहुत से इल्म इलाहियात और किताब मुक़द्दस के माहिरीन हैं, तो फिर वो क्यों इस सच्चाई को नहीं जानते? खुदा ने मत्ती की इंजील और कई दूसरे अल्फाज के जरिए वाज़ेह तौर पर खुदा माँ के वजूद की गवाही दी थी। उन्होंने आखिरी दिनों में इस सच्चाई को जाहिर करने के लिए नबूवती वक्त मुकर्रर किया था। ये 6 रोज़ा तख्लीक के छठे दिन के बिल्कुल आखिर में है। दूसरे अल्फाज में निजात के 6000 साल काम के आखिर पर किसे जाहिर होना है? ये खुदा माँ है, जिनके बारे में ये नबूवत की गई थी कि वो आखिरी दिनों में जाहिर होकर हमें जिंदगी बख्शेंगी। इस नबूवत को लोग अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। अगर हम किताब मुक़द्दस में कुछ बढ़ाएं, तो किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये लिखा है कि खुदा ज्यादा से ज्यादा आफते लाएंगे। सादा अल्फाज में कहें तो आफतें आना मतलब जहन्नम में जाना है। क्या होगा अगर हम किताब मुक़द्दस में से कुछ निकाल दें? खुदा मुक़द्दस शहर में से हमारा हिस्सा निकाल देंगे। इसका मतलब है कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। किसी भी तरह से नतीजा एक ही निकलता है, चाहे हम इसमें कुछ बढ़ाएं या इसमें से कुछ निकालें, हम जहन्नम में जाएंगे। आजकल दुनिया के तमाम कलीसियाएं खुदा बाप की तालिब हैं और उन्हें पुकार रही हैं, लेकिन किताब मुक़द्दस हमें वाज़ेह तौर पर किसके पास जाने को कहती है? खुदा ने पेशतरी वादा किया है कि जब उनके फर्जंद यरूशलेम आसमानी माँ के पास लौटेंगे, तो वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसी वजह से यूहन्ना रसूल ने भी खुदा बाप और खुदा माँ दोनों की सूरत देखी थी। आइए मुकाशफा बाब 22 की तरफ जाते हैं। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से देखते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ। यहाँ रुलकुत से मुराद खुदा की नर सूरत है। दूसरे अल्फाज में ये खुदा बाप हैं। दुल्हन कौन है? ये साफ तौर पर दुल्हन लिखा है। वो खुदा बाप की दुल्हन है। अगर वो बाप की दुल्हन है, तो हमें उन्हें क्या पुकारना चाहिए? हमें उन्हें माँ पुकारना चाहिए। एक बार फिर पढ़ते हैं कि बाप और माँ आयत 17 में क्या कहते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो क्या ले? आबे हयात मुफ्त ले। माँ के बगैर जिंदगी नहीं मिलती है। पैदाइश बाब 1 में तख्लीकी काम के दौरान खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। इस वजह से हमेशा की जिंदगी रूह और दुल्हन के वसीले बख्शी गई है, जो कहते हैं कि जो कोई चाहे हमारे पास आए और आबियात मुफ्त ले। हमें यकीनी तौर पर अपनी मर्जी से कुछ बढ़ाना या निकालना नहीं चाहिए। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो हम इन अल्फाज में कुछ बढ़ा या निकाल नहीं सकते। तो फिर तमाम बने इंसान को आसमानी माँ की आवाज को सुनना चाहिए, जो उन्हें बुलाकर जिंदगी की राह को ले जाती हैं। खुदा बाप का काम और आसमान और जमीन की तख्लीक बहुत से लोगों पर जाहिर हो चुकी है। ये लिखा है
कि खुदा माँ 6000 सालों के आखिर में जाहिर होंगी। अगर कोरिया और मगरबी ममालिक को देखें तो औरतों को उस वक्त तक वोट डालने का हक हासिल नहीं था जब तक वो जदीद माशरे में दाखिल नहीं हुई। ताहम इस जमाने में जैसे कि औरतें ज्यादा नुमायां होती जा रही हैं और मुसलसल मर्दों पर सबकत ले जा रही हैं, तो मैंने सोचा खुदा तमाम दुनिया पर आसमानी माँ की मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं। आसमानी माँ के ज़हूर के नबूवती वक्त तक हमारी आलमी बरादरी में सिर्फ मर्दों के पास इक़्तिदार था। माजी में कोरिया में हर घर में नाम की तख्ती होती थी। नाम की तख्ती पर सिर्फ बाप का नाम लिखा जाता था, लेकिन माँ का नाम और घर में रहने वाले बच्चों के नाम नहीं लिखे जाते थे। वाहिद नुमाइंदे के तौर पर बाप का नाम लिखा जाता था। तो फिर चूंकि नाम की तख्ती पर सिर्फ बाप का नाम लिखा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस घर में अकेला बाप ही रहता है? नहीं, माँ भी वहीं रहती है, मगर ऐसा लगता है जैसे वो नहीं रहती। किताब मुक़द्दस में यह लिखा है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए, नरो नारी उनको पैदा किया। हम असल इब्रानी किताब मुक़द्दस में लफ्ज़ एलोहिम देख सकते हैं। लफ्ज़ एलोहिम का मतलब खुदाओं है। क्या किताब मुक़द्दस ने इस तरह से बयान नहीं किया है? तो फिर क्या असल इब्रानी किताब मुक़द्दस में खुदा की वाहिद सूरत है? ये वाहिद सूरत में भी दर्ज की गई है। जब हम एक खुदा को जाहिर करने के लिए वाहिद इस्म इस्तेमाल करते हैं तो ये एल है। इसराइल के मामले में एल का मतलब खुदा है। एल या एलोह खुदा का वाहिद इस्म है। क्या आप जानते हैं कि किताब मुक़द्दस में खुदा को बयान करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? हैरानकुन बात यह है कि किताब मुक़द्दस में तकरीबन 2500 बार खुदा को एलोहिम के तौर पर बयान किया गया है। इसलिए ये सिर्फ खुदा बाप नहीं है जो काम करते हैं, बल्कि और कौन हर जमाने में काम कर रहा है। पुराने एहतनामा के वक्तों में खुदा ने तमाम बने नूह इंसान को इस हकीकत से आगाह किया कि खुदा बाप और माँ ने इकट्ठे काम किया। उन्होंने हमें बकसरत तालीमात बख्शी। इसके बावजूद आज बहुत सी कलीसियाएं कहती हैं कि खुदा माँ पर ईमान रखने वाली कलीसिया अजीब है, जबकि हमारी कलीसिया बिल्कुल भी अजीब नहीं है। वो जो आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, उन्हें हरगिज खुदा के कलाम में ना तो कुछ बढ़ाना चाहिए और ना ही उनमें से कुछ निकालना चाहिए। अगरचे किताब मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर गवाही देती है कि खुदा माँ वजूद रखती हैं और हमें सही लफ्ज़ दिखाती है, पर बात शायद ये कहते हुए बहस करें कि ये मुक़द्दसीन की तरफ इशारा करता है या इसका कोई मुख्तलिफ मफ़हूम होगा। ताहम किताब मुक़द्दस और अंबिया वाज़ेह तौर पर हमें बेटे और बेटियां कहते हैं और हमें खुदा को अपना बाप पुकारना सिखाते हैं। मेहरबान से इस पर एहतियात से गौर करें। ये अलकाब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये अलकाब खानदान में इस्तेमाल होते हैं। बाप, बेटा और बेटी, इनमें कौन नहीं है? इज़मीन के निज़ाम आसमानी निज़ामों की नकलो अक्स हैं। क्या इस दुनिया में माएँ वजूद नहीं रखती जो कि अक्स है? चूंकि माएँ अक्स के तौर पर वजूद रखती हैं, तो ये नामुमकिन है कि हमारी रूहानी माँ वजूद ना रखती हों। ये कोई मानी नहीं रखता। हमने पैदाइश बाब 1, गलतियों बाब 4, आदम और हवा की तारीख और हत्ता के अब्राहम और सारा की तारीख से वाज़ेह तौर पर इस सच्चाई की तस्दीक की है। इनके जरिए हम मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे पास आसमानी माँ होनी चाहिए। जब मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में खुदा बाप और खुदा माँ तमाम बने नूह इंसान को अपने पास नहीं बुला रहे हैं, वो हमें क्यों बुला रहे हैं? वो कहते हैं कि आओ और आब हयात लो। सिर्फ जब हम उनके पास आए तो हमें जिंदगी बख्शी जा सकती है। किताब मुक़द्दस के 66 किताबों में इन तमाम तालीमात के जरिए हमें ना सिर्फ खुदा बाप बल्कि खुदा माँ के वजूद को भी मुकम्मल तौर पर समझना चाहिए और दुरुस्त तौर पर खुदा के पास आना है, इस उम्मीद से कि हम एलोहिम खुदा को अब्दी शुक्र, जलाल, हम्द और इज़्ज़त देंगे जिन्होंने निजात की राह खोली ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।